Hello guys, welcome to my channel Magical Science. So today we are going to do the chapter of class 6th, which is chapter number 2. The name of the chapter is components of food. So we will not waste that much time. If you like this video, please like, share and subscribe. So let's get started. So actually ये मैंने chapter notes के form में बनाया है. तो if you think that these are important, so you can write in your notebooks. So in this chapter, the introduction is we all eat the food to obtain the energy for our daily activities. We eat different types of pulses, vegetables, etc. These components are required by our body to perform various tasks. So here the introduction is we all eat food to obtain the energy. हम रोज खाते हैं food to obtain energy. और हमें energy क्यों चाहिए? To do activities. We eat different types of pulses, vegetables, etc. हम रोज different types of pulses खाते हैं, vegetables खाते हैं, fruits खाते हैं. These components are required by our body to perform the various tasks. These components मतलब कि ये components हमारी body में के लिए क्यों require है? क्योंकि ये हमें help करते हैं to perform various tasks. So here is the definition of the health. If you want, you can underline. I am underlining it. You can underline it because it is also very much important. To stay healthy, we should have a balanced diet, take sufficient rest and sleep, protect ourselves from diseases, exercise regularly, maintain hygiene. तो हमें रोज एक balanced diet लेनी चाहिए. तो balanced diet we will learn later in this chapter. Take sufficient rest and sleep. हमें sufficient rest लेना चाहिए, sleep लेना चाहिए. और एक adult को 6 to 8 hours सोना चाहिए. Protect ourselves from diseases. हमें अपने को डिजीजेस से प्रोटेक्ट करना है और हमें रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए और हमें अपना हाइजीन मेंटेन करना चाहिए. So here in this topic we are going to learn about what do different food items contain. Different food items क्या contain करते हैं. A food is a basic requirement of a human body. The food gives us energy and also helps in the proper growth and development of our body. Food क्या है? एक basic requirement है human body की और food हमें energy देता है और हमें ग्रो करने में और हमारी बॉडी को डेवलप करने में भी बहुत मदद करता है. द एसेंशियल सब्सटेंसेस नीडेड बाय आवर बॉडी विच आर रिक्वायर्ड फॉर आवर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रिपेयर आर नोन एज द न्यूट्रिएंट्स. एंड यू कैन ऑल्सो अंडरलाइन दिस ऑल्सो as it is also important definition and it could include in your exam also. What do you mean by the nutrients? So now let us understand about nutrients. Nutrients क्या है? Essential substances है हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं for growth, maintenance और repairance of body के लिए चाहिए होते हैं और वही substances nutrients कहलाते हैं. So here you can also underline this also as it is very important. The mode of taking in the food, utilizing it is known as the nutrition. अब ये क्या है? Mode of taking in हम फूड को अंदर ले रहे हैं और उससे यूटिलाइज मतलब यूज कर रहे हैं, वो न्यूट्रिशन कहलाता है. और आई थिंक यू कैन सी हियर there are two types of nutrition namely और two types के nutrition होते हैं, autotrophic mode and heterotrophic mode. There are two types of nutrition namely two modes होते हैं nutrition के, autotrophic mode and heterotrophic mode. The process where an organism prepare its own food from a simple organic like water, minerals and carbon dioxide in the presence of the sunlight, for example plants etc. तो ऑटोट्रॉफिक मोड क्या है? द प्रोसेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड, जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म खुद बनाता है अपना फूड. फॉर एग्जाम्पल यू कैन इंक्लूड द एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स अपना खाना
खुद बनाते हैं. Second one is heterotrophic mode. The organisms which do not prepare its own food and eats other plants and animals for energy and nutrients, for example humans etc. हेट्रोट्रॉफिक मोड में क्या होता है, जब ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बनाता है और दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स को खाता है फॉर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स, उसकी एनर्जी के लिए और न्यूट्रिएंट्स के लिए, तो वो हेट्रोट्रॉफिक मोड कहलाता है. यू कैन इंक्लूड द एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन्स. ओके, सो आवर बॉडी कंटेन्स ऑफ 5 मेन न्यूट्रिएंट्स नोन टू बी एज. हमारी बॉडी में 5 मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. ये हमारी बॉडी में 5 मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं. आवर बॉडी ऑल्सो नीड्स रफेज एंड वाटर. हमारी बॉडी को रफेज और वाटर की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. वी ऑल नीड दीज कॉम्पोनेंट्स इन अ राइट अमाउंट टू स्टे हेल्दी. हमें ये सारे कॉम्पोनेंट्स एक राइट अमाउंट में चाहिए होते हैं जिससे हम हेल्दी रह सकते हैं. So next topic we are going to learn is what do various nutrients do for our body. Various nutrients, अलग अलग तरह के nutrients हमारे body के लिए क्या करते हैं. The various nutrients perform the function of for our body. Various nutrients हमारी body के लिए function करते हैं, मतलब function perform करते हैं. तो first one is carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे. कार्बोहाइड्रेट्स provides us a lot of energy to work and play. कार्बोहाइड्रेट्स हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं टू वर्क एंड प्ले. शुगर एंड स्टार्च आर द 2 मेन कार्बोहाइड्रेट्स. शुगर और स्टार्च 2 मेन कार्बोहाइड्रेट्स है. सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एज शुगर. जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है वो शुगर कहलाते हैं. कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड स्टार्च. दे आर ऑल्सो नोन एज द एनर्जी गिविंग फूड. ये एनर्जी गिविंग फूड भी माने जाते हैं, कहे जाते हैं. दे प्रोवाइड अस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. ये हमें ग्लूकोज की फॉर्म में एनर्जी देते हैं. ईटिंग टू मच कार्बोहाइड्रेट्स इज देन स्टोर्ड एज फैट्स. अगर हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो वो बाद में फैट्स की तरह स्टोर हो जाता है. दे आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने रहते हैं. सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यहाँ पे कुछ सोर्सेज है कार्बोहाइड्रेट्स के, पोटैटोज एंड ब्रेड एक्सेट्रा. सो सेकेंड वन टू डिस्कस इज प्रोटीन्स. प्रोटीन्स हेल्प्स अस इन द ग्रोथ. प्रोटीन हमें ग्रोथ में मदद करते हैं. वी नीड प्रोटीन्स फॉर बिल्डिंग अप द मसल्स एंड रिपेयरिंग वॉर्न आउट टिश्यूज़. हमें प्रोटीन्स क्यों इम्पॉर्टेंट है? वो हमारी मसल्स बिल्ड करने में मदद करते हैं और वॉर्न आउट टिश्यूज़ को रिपेयर करने में मदद करते हैं. प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अमीनो एसिड. प्रोटीन्स किससे बने होते हैं? मॉलिक्यूल्स ऑफ अमीनो एसिड. दे आर ऑल्सो नोन एज द बॉडी बिल्डिंग फूड. ये बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहलाते हैं. दे आर अ पार्ट ऑफ आवर ब्लड एंड हेल्प इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी. ये हमारे ब्लड का पार्ट है और प्रॉपर फंक्शनिंग में मदद करते हैं बॉडी की. ग्रोइंग चाइल्ड नीड्स मोर प्रोटीन्स. ग्रोइंग चाइल्ड को ज़्यादा प्रोटीन्स मिलने चाहिए. सम सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स, चिकन एंड दाल एक्सेट्रा. नाउ थर्ड वन इज फैट्स. फैट्स प्रोवाइड मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द कार्बोहाइड्रेट्स. अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स से कंपेयर करें तो फैट्स ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. ईटिंग टू मच ऑफ fats can be very harmful and can make a person obese. Obese means मोटा बना सकता है एक person को. The obesity can cause the diseases like diabetes and heart diseases. Some sources of the fats are oil and ghee etc. So next one to discuss is vitamins. Vitamins keep us fit, improve health and increases our ability to fight against diseases. तो विटामिन्स हमें फिट रखते हैं और हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं और हमारी एबिलिटी को इंक्रीज करते हैं हम डिजीज़ से फाइट करने की. जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है उसे ये इंक्रीज करते हैं. सोर्सेज ऑफ विटामिन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सोर्सेज है विटामिन्स. और ये विटामिन्स हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ना कि बढ़ाते हैं. सॉरी, आई हैव सेड रॉन्ग देयर. सो इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं विटामिन्स. और विटामिन्स कई टाइप्स के हो सकते हैं, कई प्रकार के हो सकते हैं. वी विल डिस्कस नाउ.
Here, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, and vitamin K. So, sources of the following vitamins are: विटामिन ए के सोर्स हैं फिश एंड एग्स, विटामिन बी का सोर्स है मिल्क एंड कॉलीफ्लावर एक्सेट्रा, विटामिन सी के सोर्स है ऑरेंज एंड लाइम एक्सेट्रा, विटामिन डी के सोर्स है फिश एंड बटर प्लस सनलाइट एक्सेट्रा. एंड डॉक्टर ऑल्सो प्रेस्क्राइब यू if you are having the deficiency in vitamin D, take the sunlight, but the sunlight of the morning. Vitamin E, almonds and pumpkin etc. And vitamin K, K source spinach and broccoli etc. Now next one to discuss is minerals. Minerals keeps our body healthy. They strengthen the bones and muscle and maintain the normal functioning of our body. So minerals हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं और हमारी बोन्स को स्ट्रेंथ देते हैं और मसल्स को भी, एंड मेंटेन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी, और हमारी बॉडी को फंक्शन करने में मदद कर सकते हैं. सम मिनरल्स नीडेड बाय बॉडी आर कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, सोडियम, जिंक, आयोडीन, पोटेशियम एंड आयरन. ये कुछ minerals are needed by our body. So minerals are also known as protective food, and here it is also mentioned they are also known as the protective foods because they protect us from various diseases. ये protective food भी कहलाते हैं क्योंकि ये हम diseases से हमें protect करते हैं. Next one to discuss is roughage. It is a type of dietary food which add bulk to the food. ये एक dietary food है जो bulk add कर देता है food में. It help us to digest the indigested food. help करता है indigested food को digest करने में. For example, fruits and vegetables etc. Next to discuss is, here you can remove the slash by typing mistake. Next one to discuss is water. All know what is water. Water is a liquid form. Water means pani. Water exists in three forms, which is solid, liquid and gaseous form. Water three forms में exist होता है, वो है solid, liquid and gaseous form. Yes, then next two is water also plays the major role in the human digestion. तो water play करता है major role human digestion में. It helps break down the food you eat. ये फूड को ब्रेक डाउन कर देता है जो आप खाते हो. टू फंक्शंस ऑफ वाटर आर इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर. हियर ऑल्सो द टाइपिंग मिस्टेक. रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर एंड इट कीप्स अस हाइड्रेटेड. ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है और ये हमें हाइड्रेटेड रखता है. Because what is balanced diet? Balanced diet क्या होती है? The diet which contains all the nutrients in the correct or proper amount is known as a balanced diet. एक diet जो सारे nutrients correct proper amount में है, उसमें सारे nutrients, वो balanced diet कहलाती है. Next is deficiency diseases. Diseases that occur due to lack of एनी न्यूट्रिएंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. डिजीजेस जो अकर होती है, मतलब जो हमें होती है ड्यू टू लैक ऑफ एनी न्यूट्रिएंट्स. लैक मीन्स किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी से ज़्यादा टाइम तक, वो डेफिशिएंसी डिजीजेस कहलाती है. इट इज़ द चार्ट ऑफ डेफिशिएंसी डिजीजेस एंड देयर सिम्टम्स एंड लॉस ऑफ विच विटामिन. मिनरल्स. विटामिन ए, लॉस ऑफ विजन. Poor vision, loss of vision in darkness night, sometimes complete loss of vision. Next is vitamin B1, berry, weak muscles and very little energy to work. Next is vitamin C, scurvy. Bleeding gums won't take longer time to heal. हमारे gums bleed होते हैं और ये wound मतलब ये चोट बहुत longer time लेती हैं हील होने में. विटामिन डी, रिकेट्स, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट. बोन्स सॉफ्ट बन जाती हैं और बेंट हो जाती हैं. कैल्शियम, बोन्स एंड टूथ डिके. वीक बोन्स, टूथ डिके. आयोडीन, गोइटर,
Glands in the neck appear swollen. मेंटल डिसेबिलिटी इन द चिल्ड्रन, जो ग्लैंड होता है हमारा वो स्वेल हो जाता है, मतलब सूज जाता है, और ये मेंटल डिसेबिलिटी है चिल्ड्रन में। आयरन अनीमिया वीकनेस, अनीमिया आयरन की कमी से होता है, खून की कमी से, और हमें वीकनेस फील होती है। So this was for today. If you like this video, please like, share and subscribe. And in next video, we are going to discuss about the test for carbohydrates, fats and proteins. So till then, bye. Take care. Stay safe.